evening and welcome everyone to this live session. This is 8th class on economic survey in which we are going to talk about this chapter, liquidation processes and all, process reforms, enabling decision making under uncertainty is the title of the chapter for the day. So let's get started. Can you all hear me? Can you all see me? All right, so let's begin with the class guys. Now, कल हमने जो chapter देखा, healthcare takes the center stage finally. Finally, the healthcare has taken the center stage. I'm parallelly watching this class on application today instead of the web browser as I used to do generally. So let me see your comments once. Okay, so any doubts or anything from the previous classes that we've had before? All right. So let's get started. This is the chapter for the day. Issue of over regulation is illustrated. Ever since Prime Minister Modi has taken over, जब से Prime Minister Modi ने take over किया है as the Prime Minister of the country, so ease of doing business reforms like over regulation, these type of themes have become kind of the common vocabulary in the newspapers and in the economic surveys since 2015. Okay, ever since this new government came to power. Over regulation is illustrated through the time taken for a company to undergo voluntary liquidation. Ye top Rupa Rani, the class has started. Can you see this class now? Okay, so just 1 minute, just 1 minute guys, let me just see your comments and all. Alright, 1570 days are taken even when there is no litigation or dispute. किसी तरफ से dispute नहीं भी होती ना, तो भी हमारी कंट्री में 50 दिन 1570 दिन लग जाते हैं एक कंपनी को liquidate होने में. This is a very big number of days. तो India ranks better than its peers on having regulatory standards in place. India अपने peers से तो फिर भी ठीक है, regulatory standards in place and compliance to process. The real issue seems to be effectiveness of regulations caused by undue delays, rent seeking. Rent seeking मतलब मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं आपकी फाइल तभी क्लियर करूंगा जब मेरी जेब में पैसे आएंगे. Rent seeking, complex regulations, quality of regulation. तो real issue seems to be effectiveness of regulation. Regulations होने के बावजूद भी, despite having regulations in place, if the corruption is still happening, if the lapses are still happening, so there seems to be a malice in the system. There seems to be something wrong, as we call it effectiveness of regulation. हम effectiveness of regulation कैसे जज करते हैं? Effectiveness of regulation जज करने के लिए सीधा तरीका ये है कि क्या regulations होने के बावजूद frauds हो रहे हैं? Yes. तो रेगुलेशन इफेक्टिव तो नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कानून का, इन रेगुलेशंस का ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे पड़ता है जो कंप्लायंट लोग हैं, जो लॉ के अनुकूल चलने वाले लोग हैं. ठीक है. इंडिया ओवर रेगुलेट्स द इकोनॉमी. This results in regulation being ineffective even with relatively good compliance with the processes. ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने वाले लोग ज़्यादा होने के बावजूद यदि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रूल्स होने के बावजूद यदि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि क्या मतलब है कि यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में है ही नहीं. गॉट इट? सो ये मतलब है इसका. ओवर रेगुलेशन इज एन अप्रोच. माय डियर फ्रेंड्स, देखो, इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट होता है कि सर्वेक्षण करना, सर्वे ऑफ द पास्ट ईयर इकोनॉमी इन द प्रीवियस ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेकिंग सम रेमेडियल steps wherever we were lacking. Okay, taking remedial steps wherever we were lacking and taking remedial steps wherever we were lacking, and then parallelly taking some
टोनिंग अप द गुड स्टेप्स दैट वी हैव टेकन इन द पास्ट ईयर। जो चीज़ें सही चल रही थी उनको और बढ़ावा दिया जाए, जो चीज़ें गलत चल रही थी उनको रेमेडी किया जाए, उनको सही किया जाए। लेकिन इस तरह के टॉपिक्स अगर इंडिया में बार बार लाए जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक सर्वे में लाने के हैसियत नहीं रखते। समझ रहे हो? ये क्या है, एक ओवर आर्किंग रिफॉर्म की प्रोसेस आप उसकी बात कर रहे हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टॉपिक हो गया, ठीक है, उसको हर साल छापने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे में दिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिटिगेशन होता है हमारी कंट्री में, ये सारी रेकरिंग थीम्स बार बार आ रही हैं, तो आप इस पे GS मेंस पेपर 3 में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, टाइम एंड प्रोसीजर्स नीडेड टू वॉलंटरली क्लोज अ कंपनी इन इंडिया इवन व्हेन देयर इज नो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट और लिटिगेशन। क्लियर? तो सिंप्लीफाई सॉल्यूशन क्या है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, इन्वेस्ट इन ग्रेटर सुपरविजन विल लीड टू ग्रेटर डिस्क्रिशन। ठीक है, अब रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इन्वेस्ट इन ग्रेटर सुपरविजन। अगर इंस्पेक्टर राज सुपरविजन और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? डिस्क्रिशनरी पावर्स ब्यूरोक्रेट्स के पास में, रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पास में, लेबर इंस्पेक्टर के पास में ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी, है ना? ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो पहला स्टेप है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। पहले लॉज को, लेबर लॉज की अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, पहले लेबर लॉज को सिंप्लीफाई कर दो। लेबर लॉज को सिंप्लीफाई कर दिया, फिर सुपरविजन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, कंसर्टेड मैनर में, फोकस्ड मैनर में इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा। इफ देयर आर प्लेथोरा ऑफ लॉज, इफ देयर आर सो मेनी लॉज विच आर नॉट सिंपल फॉर इवन द लेबर इंस्पेक्टर, just an example of labor department I'm giving you, even for the labor inspector to comprehend, if I am a labor inspector, मेरे को उन लॉज को समझने में दिक्कत आ रही है। अगर 67 लॉज हैं ऐसे, ठीक है, इसकी बजाय तो ये है कि हम 8 लॉज लेके आए, उन 8 लॉज की सुपरविजन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। स्टेप 1 इज सिंप्लीफाई, स्टेप 2 इज इंक्रीज द सुपरविजन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, एंड देन गिव ग्रेटर डिस्क्रिशन, ग्रेटर पावर्स टू दी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। डिस्क्रिशन का मतलब पता है क्या होता है? अथॉरिटी होना एक अलग बात है, डिस्क्रिशन होता है कि मेरे पास ये डिस्क्रिशन है कि मैं किसका एक्सेस ब्लॉक करूंगा और किसका नहीं करूंगा, है ना? मेरे पास डिस्क्रिशन, अगर मान लो कि आप क्लासेस में रेगुलर नहीं हो तो मेरे पास ये डिस्क्रिशन है कि सुहर्ष, जस्ट 1 मिनट, कि सहर्ष का और अंबुज दोनों लोग रेगुलर नहीं है। सहर्ष का पहले भी ऐसा केस हो चुका था कि सहर्ष पहले भी रेगुलर नहीं थे और अंबुज पहले रेगुलर थे लेकिन अभी रेगुलर नहीं है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि रूल में नहीं लिखा कि अगर 7 दिन के लिए कोई रेगुलर नहीं है तो उसको ब्लॉक कर दो। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि मेरे पास एज एन इंस्पेक्टर ये पावर है कि जो बच्चा पहले इर्रेगुलर था क्लासेस में, मैं उसको अभी ब्लॉक कर सकता हूं, भले ही वो 3 दिन के लिए इर्रेगुलर हुआ है, टू टीच हिम अ लेसन। अंबुज को मैं ब्लॉक नहीं करूंगा क्योंकि अंबुज पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स दैट आई सॉ इन द कॉमेंट सेक्शन, नॉट टू बी टेकन इन एन ऑफेंसिव मैनर, ठीक है? इट गोज विदाउट सेइंग, अगर मैं लेबर इंस्पेक्टर हूं, अगर कोई कंपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ, दिक्कत पता है क्या होती है? डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज किया जाता है। अगर मैं लेबर इंस्पेक्टर हूं, कोई कंपनी बार बार नॉर्म्स को तोड़ रही है, ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा। लेकिन अगर एक कंपनी ने पहली बार रूल तोड़ा, कोई रेगुलेशंस को वॉयलेट किया, मेरे पास डिस्क्रिशन है, मैं उसके ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? misuse of discretion. I am in a way threatening the first time violator to pay me the bribe दो, रेंट सीकिंग एज वी कॉल इट, ठीक है? तो ये डिस्क्रिशन, इसलिए डिस्क्रिशन को चेक करने के लिए नए नए औजार निकाले जा रहे हैं, ठीक है, नए नए वेज एंड मीन्स निकाले जा रहे हैं। दीज डेज वी आर हैविंग इंटरेक्शन विद IRS ऑफिसर्स हु आर इन सर्विस, तो वी टेल हिम कि भाई वी जस्ट आस्क देम कि आप जो है इंटरव्यू बोर्ड का पार्ट हो गए, ये सब हो गए, तो दे टेल अस, मैंने बोला कि आपके डिपार्टमेंट में तो वैसे ही मतलब GST डिपार्टमेंट में हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो यू ऑलरेडी मस्ट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल, तो दे से कि हमारे यहाँ पे फेसलेस टैक्स असेसमेंट है।
डिस्क्रिशन दे दो, डिस्क्रिशन देना इज अ गुड थिंग, उनके हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर्स होनी चाहिए ताकि उनका डर रहे कानून के वॉलेटर को। लेकिन साथ साथ जब वो असेसमेंट करेंगे ना कि किसी के टैक्स का, मेरे टैक्स का असेसमेंट करना है, तो फेस टू फेस नहीं होगा। फेस टू फेस होगा तो क्या होगा, लक्ष्मी जी एक्सचेंज होंगी, मनी अंडर द टेबल ब्राइबिंग एंड ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। इट्स बेटर टू डू इट वाया कंप्यूटर। आप, मेरी सुनवाई होगी, अगर मैंने टैक्स का कोई लॉ, कोई प्रोविजन वायलेट किया है, लेबर का कोई प्रोविजन वायलेट किया है, तो आई वुड बी गिवन अ हियरिंग, बट इट वुड नॉट बी अ पर्सनल हियरिंग, इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड, टेलीकॉन्फ्रेंस बेस्ड हियरिंग, जूम मीटिंग वगैरह में, और वो सारा रिकॉर्ड होगा। आप रेंट सीकिंग नहीं कर सकते, कोडेड भाषा में बात नहीं कर सकते, टेलीफोनिकली आप उस पर्सन को कॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना आसान है, कॉल करके एजेंट वगैरह फ़ोन करेंगे कि इतने पैसे भिजवा दो यहाँ पे, और सीसीडी में मिलते हैं या कहीं पे मिलते हैं और आप पैसे दे दो। लेकिन सरकार ये कह रही है, देखो पहला स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले ये है कि अगर इतनी सारी रेगुलेशंस होंगी तो लेबर इंस्पेक्टर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स भी, वी वुड नीड मोर ऑफ देम, है ना, बिकॉज देर आर सो मैनी ऑफ देम, so many of the companies are there. It's better to first simplify this one and then switch to greater supervision. Catch the big fish and create an example. Catch the big fish which is violating, which is polluting the water, which is setting a wrong example by violating the law, by not paying the tax on time. Okay, and then give greater discretion to these officers. Simple looking slide explained in the detailed manner possible. Got an idea of it? Bring transparency in decision making process. How to bring about transparency in decision making process? To bring about transparency in DM process, you have to enable RTI applications to get the details of file notings on the files. File noting is, if I am a bureaucrat, then atop every file, on the cover page of every file, outer cover, or inside, I would put a sticky note, or I would put my note that due to this and this reason, ethanol blending is not being increased, because this will have adverse impact on other industries. Due to good reasons, pollution and all, ethanol blending is being increased. Clear? Ethanol blending is being increased to 20% of 20% टोटल, राइट। सो मैं अगर जो डिसीजन ले रहा हूँ, क्या जनता को ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग इंक्रीज करी तो क्यों करी, वाई इज इट बीइंग डन? यस, पीपल शुड हैव अ राइट टू नो अबाउट इट थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट इन 2016 हैड सेट अप अ डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस नोन एज जेम पोर्टल, जेम वेबसाइट। गवर्नमेंट को जो प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो गवर्नमेंट जेम पोर्टल के थ्रू करती है, फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड और सोल्ड बाय द गवर्नमेंट PSUs। गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट को अगर परचेजिंग करनी है तो पहले क्या होता था, एयर कंडीशनर परचेज करने के लिए, या गवर्नमेंट ऑफिस में अलमीरा परचेज करना है, या कोई स्टेशनरी परचेज करनी है, तो एक बहुत ही ओपेक मैनर में, हिडन मैनर में ये कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स फ्लोट किए जाते थे, और किसको एलोकेट किया जाएगा, कौन सी कंपनी सरकार को पेपर बेचेगी, कौन सी कंपनी का नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता था। ठीक है, अब क्या है, जेम पोर्टल पे कंपनीज अपना पेपर अप्रूव कराती हैं, अपना प्रोडक्ट अप्रूव कराती हैं, और जिसका प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है वही प्रोडक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खरीदना होता है, राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेम वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर बुक कर सकता है। इसमें कोई लेन देन मिली भगत नहीं होती, क्योंकि सबको प्राइस, सभी डिपार्टमेंट्स को सभी कंपनीज का प्राइस दिख रहा होता है, सभी कंपनीज को सभी डिपार्टमेंट्स के टेंडर्स दिख रहे होते हैं कि किसने, कौन से डिपार्टमेंट को कितने पेपर के रिम्स चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को स्टेशनरी चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को कितने कंप्यूटर्स चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को कितने एयर कंडीशनर्स चाहिए। उस बेसिस पे अगर मान लो कि LG के AC का प्राइस 25,000 है,
वोल्टास के एसी का प्राइस 23,000 है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वालिटी एंड एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट। तो एलजी अगर 25,000 का बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर एलजी से परचेज करेगा तो उस आईएएस ऑफिसर से या उस ऑफिसर से जिसने ये डिसीजन लिया 25,000 रुपीज़ का महंगा एसी खरीदने का, उससे पूछताछ हो सकती है कि भैया आपने किस कंडीशंस पे ये महंगा एसी खरीदा। ठीक है, दिस इज अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। जेम एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। व्हाई स्पीड एंड हाउ स्पीड? कैसे स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है? स्पीड कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रही है, अगर मैं एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट हूं तो मैं पता क्या करता हूं, फाइल पासिंग। मैं अकेला फंसूंगा अगर मैं डिसीजन लूंगा एसी खरीदने का। कितने एसी खरीदने हैं? मान लो कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन का एक आईएएस ऑफिसर हूं, चेयरपर्सन हूं, ठीक है। मैं अगर अकेला एसी के फाइल पे साइन करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी कि मैं फंस सकता हूं। कल को सीबीआई या विजिलेंस डिपार्टमेंट मेरे से ये पूछेगा कि आपने साइन करे। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब जेम पोर्टल नहीं था तो मैं अपने आईएएस ऑफिसर, अपने ऊपर के ऑफिसर को बोलता हूं कि प्लीज़ अप्रूव दिस। फिर मैं अपने जो मेरा कॉलीग है, मैं सेक्रेटरी हूं, एडिशनल सेक्रेटरी के साइन करवा लूंगा, फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी के साइन करवा लूंगा, फिर मैं मिनिस्टर के साइन करवाऊंगा। ऑल दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल ऑफ देम वुड एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ कॉशन while signing on the file, approving the purchase of 100 air conditioners for the university, approving the purchase of books in the library of the university. This takes a lot of time and time is crucial. अब क्या होगा, सबको सारे प्राइजेस दिख रहे हैं, जब वहाँ पे सीधा लिखा है जो सबसे चीपेस्ट प्राइस है उस पर आप परचेज कर सकते हो। अदर थिंग्स लाइक वारंटी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज कितनी मिलेंगी, ऑल सच थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। गॉट एन आइडिया? तो स्पीड भी इस वजह से बढ़ जाती है। एवरीबडी प्लीज टाइप यस। डिस्क्रिशन यानी कि मनमानी पावर्स मनमाने तरीके से ना यूज़ हों। मनमानी पावर्स होनी चाहिए। डिस्क्रिशन, एक ऑफिसर को डिस्क्रिशन देना ज़रूरी क्यों है? आपके एथिक्स में भी ये क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिशन एंड अथॉरिटी? अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इफ आई हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट यू, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर इन द कोर्ट व्हाई डिड आई अरेस्ट यू। Discretion is during the polling days, during the time when the voting is around the corner, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? I have got the discretion, I have got the power to arrest you. पावर के लिए मेरी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, इलेक्शन से पहले मैंने किसी को अरेस्ट किया, अगर मेरे से कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि इसको अरेस्ट क्यों किया, तो मैं सिंपल ये बोलूँगा कि मुझे इस आदमी पे बोगस वोटिंग का जो है शक था। आई सस्पेक्टेड दिस पर्सन फॉर इंडल्जिंग इन मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल टाइम्स में किसी को अरेस्ट करूँगा तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि शो अस द प्रूफ दिखाना ज़रूरी हो जाता है। समझ रहे हो ना? डिस्क्रिशन और अथॉरिटी में डिफरेंस है। Principal has got the discretion to do something. Teacher has got the authority to give the punishment to a chap, to a student. Principal to some extent has got the discretion. Management कोटा में एडमिशन ले लिया, वो सारी चीज़ें। मैनेजमेंट कोटा में या EWS कोटा में एडमिशन लेना डिस्क्रिशनरी पावर्स में पहले आता था, लेकिन जैसे जैसे फॉर्मल प्रोसेसेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी या प्रोसेसेस या विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरी बात समझना,
टेक्नोलॉजी की मदद से ना डिस्क्रिशनरी पावर्स चेक होती जा रही हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था पहले के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती थी, एसएसपी को, पुलिस को कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती थी धारा 144 लगाने से पहले, कर्फ्यू लगाने से पहले। लेकिन विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस, डिस्क्रिशनरी पावर्स आर बीइंग रिड्यूस्ड टू सम एरियाज ओनली. Now, before levying curfew or after levying curfew, as a district collector or as a senior superintendent of police, I might be questioned. कि why did you invoke section 144? आपने धारा 144 क्यों लगाई, जिसमें कि पुलिस को किसी को भी गोली मारने के अधिकार हैं? तो मेरे को वीडियो फुटेज दिखाना पड़ेगा कि ये भीड़ बेकाबू हो रही थी. द क्राउड वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सो आई हैड टू ऑर्डर invocation of section 124 so that people do not go out of control. ठीक है, तो this leads to transparency in the decision making process at the micro level and similarly at the macro level. Environment impact assessment, ये सारा वीडियोग्राफिक वे में किया जाने लगा है. जियो टैगिंग. Are you getting my point? So this is what the survey is talking about. Discretionary power needs to be balanced with transparency in decision making. Bring about as much transparency as possible. Got it? GEM facilitates listing of products for individuals, prescribed categories of goods, services of common use. Then look, estimate, compare and buying facility on dynamic pricing basis. Dynamic मतलब जैसे कि अमेजन पे प्राइस बार बार चेंज होते रहता है, तो आप क्या करते हो? जब प्राइस सबसे कम होता है तभी परचेज करते हो. मार्केट प्लेस बाइंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कॉमनली यूज आइटम्स इन दी गवर्नमेंट. जेम फैसिलिटेट्स बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बाइंग. यूजफुल फॉर लो वैल्यू बाइंग एंड ऑल्सो फॉर बल्क बाइंग एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेज यूजिंग रिवर्स ऑक्शन. ठीक है, ई बिडिंग. रिवर्स ऑक्शन क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये आइटम इतने पे कौन देगा. मैं अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ये आइटम कितने में मिलेगी. मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये आइटम इतने प्राइस पे, जितने प्राइस पे मैं लेना चाहता हूं, इतने प्राइस पे कौन देगा ये बताओ. तो समझ में आया? Got it? तो कुछ इस तरह से क्लियर. तो मतलब इस सिस्टम में क्या होता है दैट देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स, मल्टीपल सेलर्स एंड वन बायर. देयर इज वन बायर दैट इज गवर्नमेंट एंड मेनी सेलर्स, राइट. बायर्स ऑर्डिनरी ऑक्शन से कैसे डिफरेंट है? इन ऑर्डिनरी ऑक्शन बायर्स कंपीट टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बाय ऑफरिंग इंक्रीजिंगली हायर प्राइजेस. ठीक है. रिवर्स बाइंग में क्या होता है कि मैं कम प्राइस पे खरीदूंगा. मेरे को आप ये बताओ कि आप मेरे को अपनी सर्विसेज कितने में बेचने में तैयार हो, राइट. ये क्या है? रिवर्स ऑक्शनिंग. मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने में मेरे को सर्विसेज कौन बेचेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कौन सबसे कम में बेचेगा. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि हर कोई अपने प्राइस कम से कम करके टेंडर भेजेगा मेरे को. मेरे लिए आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना. Clear? So useful for low value buying and also for bulk buying at competitive price using reverse auction or e-bidding. Continuous vendor rating system. Continuous वेंडर रेटिंग सिस्टम. वेंडर को रेट किया जाएगा कि वेंडर ने जो कमिटमेंट्स करी थी एसी बेचते टाइम सरकार को, इज ही लिविंग अप टू देम और नॉट. जस्ट लेट मी हैव अ लुक एट योर कमेंट्स एंड डाउट्स. जस्ट 1 minute. Can you all comment please once? Akansha Pandey, this means sir only price is the criteria.
Yes, only price is the criteria. Okay. नो, ओनली प्राइस इज द क्राइटेरिया वुड बी रॉन्ग हेयर. मेरे कहने का मतलब ये है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस इज नॉट. देखो वहाँ पे ये दिया होता है, जब आप कंपेयर बाय हट के ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हो ना, तो वहाँ पे एक चेकलिस्ट दी होती है. 3 years वारंटी, येस. कंप्रेसर की वारंटी, एसी का जो कंप्रेसर होता है 5 years वारंटी, येस. फिर उसके बाद 6 months फ्री सर्विसेज, येस. ठीक है, ये सारा कुछ वहाँ पे चेकलिस्ट में येस और नो की टिक लगा होता है ना, जब आप किसी कंपनी का ब्रोशर चेक करते हो कि येस और नो. तो वो कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए प्राइस, जो दोनों आइडेंटिकल आइटम्स हैं उनका प्राइस सेम होगा या एक का प्राइस ज़्यादा होगा या एक का कम, तो सरकारी विभाग को कम वाली खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, तो दिस इज देयर. ठीक है, तो दिस इज देयर. नाउ रिटर्न पॉलिसी हैज टू बी देयर. डिस्क्रिशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद we have to build resilient ex post resolution mechanism. यानी कि after the decision has been taken or after something has happened, resilient after resolution, afterwards resolution mechanism. यहाँ पे लिखा ना ex post. ex post मतलब after the fact has happened, after something wrong has happened. हमारे यहाँ पे resilient criteria होना चाहिए. जैसे कि पहले एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, अगर कोई बैंक, मान लो कि मैं सीएमडी था, मेरे टेन्योर में लोन दिए गए विजय माल्या को, मैं हो गया रिटायर. न्यू सीएमडी जब आए, न्यू सीएमडी अगर विजय माल्या को जो लोन्स दिए गए हैं इस न्यू सीएमडी के टेन्योर में, ये लोन्स को अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दिखाया जाएगा, तो क्या होगा कि जो बैंक का जो प्रॉफिट है उसमें से ये माइनस हो जाएंगे. 5,000 करोड़ के लोन है, बैंक का प्रॉफिट है 5,500 करोड़. 5,500 करोड़ में से अगर 5,000 के बैड लोन्स को इस नए सीएमडी के टेन्योर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब ये बात मान ली जाएगी कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, छवि खराब हो जाएगी इस सीएमडी की, है ना. तो ये सीएमडी इसको दबा देगा, ये बोलेगा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तब दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने में सीएमडी का फ़ायदा है, इनकी इमेज अच्छी बनी रहेगी. इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर एफिशिएंट लीगल सिस्टम, कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस सच एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एटसेट्रा. हाउएवर द कोर्ट सिस्टम रिमेन्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉर ex post resolution. ex post का मतलब after the fact has already happened. Got it? Have you guys got it? जब फैक्ट हो गया ना, तो फिर ex post, ये इसमें सबसे बढ़िया ये चीज मानी जाती है. समझ में आया? All specification remains the same. Lowest bidder will get the tender. Yes. Is there any criteria for vendor rating? Yes. जेम पोर्टल पे देखो यार, मैं तुम्हें ना सिंपल, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है. मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सारा कुछ ई के नाम में ये हम बोलते हैं ना कि सारा कुछ सेट हो गया. ठीक है, ई टेंडर और ये इंडिया, सम एलिमेंट्स इन द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया आर करप्ट एंड दोज प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू कंटिन्यू. अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है. यानी कि अगर एलजी कंपनी है, वेंडर है, फिर सैमसंग है, दोनों एसी बेच रही हैं, तो इनकी रेटिंग दी जाएगी कि क्या इन्होंने पिछली बार जो एसी परचेज किए थे, इन्होंने पूरा उनका अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को सही मायने में उनका भुगतान किया, निवारण किया. डिड दे कंप्लाई विद द आफ्टर सेल सर्विसेज कमिटेड बाय देम. क्या उन्होंने 5 साल की गारंटी दी थी, तो क्या जब कभी कंपनी को कॉल किया गया क्या एसी रिपेयर किया गया, येस और नो. डिपार्टमेंटल हेड जो है रिकॉर्ड के बेसिस पे ये इस वेबसाइट पे रेटिंग देगा, तो बाकी डिपार्टमेंट्स को ये पता लगेगा कि उनकी रेटिंग, एलजी की रेटिंग अच्छी है, तो एलजी का प्राइस अगर 24,500 है, सैमसंग का 24,000 है, बट एलजी की रेटिंग अच्छी है, तो इसका मतलब एलजी सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड बी ऑथोराइज्ड, वुड बी अलाउड टू पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा रेटिंग क्राइटेरिया पे. लेकिन ना बच्चों, दुनिया इतनी सीधी नहीं है. देखो क्या होता है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये एक बाबू हैं, ये इनकी टेबल है, ये एक बाबू बैठे हैं. ठीक है, इनके पास क्या होता है, सीधे हैं ये. ठीक है, इनके पास क्या होता है कि जब कभी ये टेंडर्स भरे जाते हैं ना, तो
सरकारी डिपार्टमेंट के क्लर्क वगैरह वो पहले कंपनीज को बता देते हैं कि टेंडर आ रहा है, तो तुम एक काम करना, 23,000 रुपये रिजर्व प्राइस है, ठीक है, लेकिन हम इसको 24,500 कर दे रहे हैं, तो यानी कि 1,500 रुपये जो भी तुम टेंडर में प्राइस भरोगे 1,500 रुपये पर एसी साहब के अकाउंट में, स्विस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाने चाहिए। यानी कि हर कंपनी को इनडायरेक्टली ये कन्वे कर दिया जाता है कि तुम टेंडर भरने के लिए यहाँ नहीं आओगे या आओगे। मैं सरकारी विभाग का क्लर्क हूँ, साहब के बिहाफ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई ना कोई औनी पौनी गलती निकाल दी जाएगी, जो तुम सील्ड कवर में टेंडर भेजोगे, कोई ना कोई हम फ्लिम्जी ग्राउंड पे तुम्हारी कंपनी सैमसंग का वो रिजेक्ट कर देंगे अगर 1,500 का रिजर्व प्राइस ना रखा गया, ठीक है। 15 सभी कंपनीज क्या करेंगी, सरकार ने ये बोला कि एसी 23,000 में लेना है हमें, लेकिन कोई भी कंपनी 23,000 टेंडर नहीं भरेगी। सभी कंपनीज 24,000, 24,700, 1,500 रुपये मंत्री का कट पहले रख लिया जाता है, यानी कि ये सारी कंपनीज 24,500 के ऊपर बिडिंग करेंगी। मंत्री, ब्यूरोक्रेट सबका कट रख लिया जाता है। कहने को भाइयों बहनों हम जेम पोर्टल लेके आए, लेकिन हमने जैम भी खाई। मतलब समझ में आया? तो ऐसा ही काम होता है, कहने की बातें हैं ये सारा कुछ। IBC आई एक्सप्लेन इन माय रेगुलर क्लासेस आकांक्षा। अभी यहाँ पे IBC में एक काम करूँगा कि एक करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग है उसको हम मोनेटाइज करेंगे कुछ एक वे में, और यू कैन गो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे हाइब्रिड कोर्स इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, else I will try getting the class uploaded on YouTube. It won't be possible here, okay? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को ये डिटेल में डील करना, अब मतलब समझ में आया, डील करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मतलब समझ में आया कि कहने को ई टेंडरिंग और ये सब में करप्शन नहीं होती, लेकिन व्हेन देयर आर अ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स, कौन सी कितनी कंपनियां गिन लोगे? सैमसंग, LG, हिटाची, ओ जनरल, डाइकिन, यही 4-5 कंपनियां हैं ना एसी की, एयर कंडीशनर की। ब्लू स्टार गिन लोगे, वोल्टास गिन लोगे। 7 कंपनियों को एक फ़ोन लगा के क्लर्क का ये बोलना कि तुम महंगे में 1,500 रुपये का कट रखना और फिर अपने टेंडर में भरना, ये कोई बड़ी बात है? कैन करप्शन हैपन ड्यूरिंग ई टेंडरिंग? येस, इट कैन हैपन। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये कहने के लिए है कि ट्रांसपेरेंसी और ये सब हो रहा है। मतलब समझ में आया? क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है कि 23,050 रुपये का टेंडर भर देती है, उसे वो टेंडर मिल जाना चाहिए, लेकिन उसमें 10 कमियां पेशियां ये ब्यूरोक्रेट्स निकाल देंगे कि पहले वाली टर्म्स एंड कंडीशंस में ये कमी पाई गई, तो हमने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज किया है, अब आप दोबारा से टेंडर भरो। उन कमियों पेशियों में ये देखा जाएगा कि वो कंपनी जिसने सबसे सस्ता टेंडर रखा था और ब्राइब देने से मना कर दिया गया था, उसको किसी ना किसी ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कोई भी कंपनी रिजेक्ट होना नहीं चाहेगी। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? सो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। आज के लिए मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँगा। 7 और 8 चैप्टर को हम कल डील करेंगे, उसके बाद 9 और 10 रह जाएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। वॉल्यूम 2 जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड दैट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, इट हैज़ रिमेन्ड द सेम इन लास्ट 4-5 ईयर्स, ओनली माइनर चीज़ें दे चेंज हियर इन दैट, ठीक है, मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम। गॉट इट एवरीवन? मतलब समझ में आया कि मतलब हम ये बोलते हैं ना ई टेंडरिंग और ये सब आंखों का धोखे के लिए रहता है। बाकी तुमने ये पढ़ लिया, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि डिस्क्रिशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। डिस्क्रिशन एंड पावर, for discretion and power there is no answerability. I have got the power to issue a BPL card to some of the people, ठीक है, some of the people if I am a district collector, deputy collector, but जरूरी नहीं है कि वो पावर मिसयूज़ हो या ना हो। मैं बोलूँगा कि मैंने कर दी, मुझे क्या पता, दिख रहा था ये कि ये गरीब है तो मैंने इसको इशू कर दिया राशन कार्ड, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो आई एम क्लोजिंग दिस क्लास फॉर टुडे। See you for this class tomorrow the same time. Thank you everyone. Thank you guys. जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। आई हैव बीन कवरिंग दिस इकोनॉमिक सर्वे इन द करंट अफेयर्स सिंस लास्ट 2-3-4 years since the time I have been teaching. So this is there. Okay, तो इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा, then we will go for current affairs
classes of social issues, political issues, economic issues, constitutional issues, etc. All right. Thank you, everyone. Bye bye. Good night, guys.